बेटा कहाँ तक लिखा था हमने? रोहिणी नहीं आई क्या? मैसेज डाल रही हूँ सर उसको। क्या लिखा था बेटा हमने? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हाँ, उसमें कुछ लिखा था, हाँ लिखा था। पढ़िए। Training and development refers to educational activity within a company created to enhance the knowledge and skills of employees while providing information and instructions on how to better perform a specific task. Employee training and development in HRM is defined as a system used by an organization to improve the skill and performance of the employee. An effective training and development initiative helps the company enhance the skill of working manpower and improve productivity. लेट हो गए बेटा रोहिणी? रोहिणी लेट हो गए? हाँ सर। हाँ। लुक, training and development. Training and development is an educational activity within an organization while performing a job. तीन फैक्टर क्या क्या है? तीन फैक्टर, एजुकेशनल एक्टिविटी, अंडरलाइन करो, एजुकेशनल एक्टिविटी within an organization, within a organization, within an organization to perform a task. एकेडमिक्स में हम सीखते हैं, राइट? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में एकेडमिक्स में नहीं, हम कहाँ सीखते हैं? कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर कभी भी एम्प्लॉय को हायर करती है, रिक्रूट करती है, कभी भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते है, रिक्रूट करती है, तो उसके बाद वो उनको क्या करते हैं? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देती है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मतलब होता है कि उनका स्किल इंप्रूव करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरह उनको क्या देना, पढ़ाना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनको मशीनरी पे ट्रेनिंग देना पड़ता है कि उनको जो स्पेसिफिक टास्क के लिए कंपनी ने अपॉइंट किया है वो टास्क को वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके। इट इज अ एजुकेशनल एक्टिविटी विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। एजुकेशनल एक्टिविटी पढ़ाना है विद इन अ कंपनी, कंपनी के अंदर, कॉलेज में नहीं, कंपनी के अंदर प्रैक्टिकली एम्प्लॉय को पढ़ाना है, सिखाना है, उसको बताना है कि अगर आपने ये ट्रेनिंग लिया है, अगर आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, या ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको मशीनरी में परफॉर्म करना आ जाएगा, मतलब आपकी स्किल इंप्रूव हो जाएंगी। हम उनको पढ़ा रहे, हम उनको सिखा रहे, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे। कहा? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। ठीक है? हाँ सर। हाँ, ओके। हेडिंग डालिए बेटा, स्टेप्स इन ट्रेनिंग। स्टेप्स इन ट्रेनिंग। सबसे पहले
assess training need. Assess training needs. उसमें लिखिए बेटा, the first step in developing developing a training program is to identify and सर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद is to identify and assess needs. Full stop. Assess needs. Assess needs. Full stop. Employee training needs में employee training needs में employee training needs may already be established in the organization strategy. In the organization strategy, comma, human resources, comma, human resources or human resources or individual development goals. Individual development goals. Full stop. If you are building if you are building the training program from the training program from the training program from scratch scratch सर bracket द में ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर scratch 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 ब्रैकेट में लिखिए बेटा without predetermined objective without predetermined objective full stop
you will need to assess which area to focus on. Which area to focus on. Area to focus on. Area to focus on. सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा, सेट ऑर्गेनाइजेशनल क्या सर? सेट ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव. Set organizational ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव. उसमें लिखिए, द ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट. द ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट. The training needs assessment. The training needs assessment will identify any gaps. Will identify any gaps in your current training initiative. 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 And employee skill sets. And employee skill sets. And employee skill sets. Full stop. These gaps should be analyzed. This gap should be analyzed. This gap should be analyzed. In priority. In priority. And turn into the. And turn into the.
Organization's training main objective. Organization's training main objective. Objective. The ultimate goal is to bridge. The ultimate goal is to bridge Is to bridge, B-R-I-D-G-E, bridge bridge the gap between current the gap between current the gap between current and desired and desired and desired performance and desired performance. Through the development of a through a development The development of a through a development of a training program full stop at the employee level at the employee level, comma, कहाँ तक लिखा बेटा? at the employee level. आवाज ही नहीं आ रहा है, कहाँ तक लिखा? At the employee level. Okay. Comma, the training should match the training should match the training should match the training should match the areas of improvement, comma, the areas of improvement, comma, which can be comprehensively comprehensively identified through
360 feedback and evaluation. 360 360 feedback and evaluation. Feedback and evaluation. Next point, third. Create training action plan. Create training action plan. Create training action plan. Create training action plan. The next step is to create a comprehensive action plan. A comprehensive action plan that includes learning theories, comma, instructional design, comma, learning theories, instructional design, comma, content, comma, material and other training elements. Material and other training elements. Material and other training elements. Full stop. Resources and training delivery methods. Resources and training delivery methods should also be detailed. Resource and training delivery method should also be detailed. Full stop. While developing the program, comma, the level of training and participants learning styles need to also be considered. Full stop. Many companies pilot their initiative and gather feedback. To make adjustments
to make adjustments well before launching the program company wide. The program company wide. The program company wide. Fourth point है implement training initiative. Implement training initiatives. इसमें लिखो the implementation phase is where the training program when the training program comes to life full stop. Organizations need to decide whether training will be delivered in-house or externally coordinated एक मिनट बेटा कहाँ तक लिखे हो externally coordinated. full stop. Program implementation should consider
employee engagement and program implementation, employee engagement and employees engagement and employees engagement and learning goals as well as planning the scheduling of training. Planning the scheduling of training. Planning the scheduling of training. फिफ्थ पॉइंट लिखिए बेटा, evaluate and revise training. Evaluate and revise training. As mentioned in the last segment, comma, the training program should be the training program should be continuously monitored. The training program should be continuously monitored. Continuously monitored. Full stop. In the end, comma, in the end, comma, the entire program should be the entire program should be evaluated to determine evaluate to determine evaluate to determine evaluate to determine if it was successful, if it was successful if it was successful and met training objective and met training objective and met training objective
and made training objective. Feedback should be obtained from feedback should be obtained from feedback should be obtained from all the stakeholder and to determine program and instructor effectiveness comma plus knowledge and skill acquisition plus knowledge and skill acquisition full stop. Analyzing this feedback alongside an employee performance review will allow the organization to identify कहाँ तक लिखा बेटा The organization to identify any weakness in the program at this point comma, the training program or action plan can be revised if objective or revise if objectives or expectations are not being met being met
look, there is a need of training. We are talking about training and development. हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें. देयर इज अ नीड ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग की जरूरत है कंपनी को. क्यों, किस लिए? अगर जरूरत है तो हमें क्या क्या चीजों को इम्प्लीमेंट करना है. ट्रेनिंग की जरूरत है हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज को. हमारे कंपनी सबसे पहले पॉइंट स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे. सबसे पहले पॉइंट, एसेस ट्रेनिंग नीड्स. देयर आर बिग कंपनी एंड सेपरेट डिपार्टमेंट आर देयर. हमारे पास एक बहुत बड़ी कंपनी है और अलग अलग डिपार्टमेंट है हमारे कंपनी के अंदर. ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है. तो हमें एसेस करना पड़ेगा, हमें इवेलुएट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कंपनी के कौन से डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग की जरूरत है. एक सबसे पहले हमें एनालाइज, हमारी एक कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे कंपनी के कौन से डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग की जरूरत है. राइट, हमारे डिपार्टमेंट को देखिए कैसे. देयर आर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. हमारे पहले से ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि ट्रेनिंग से हमें क्या चाहिए. हमारे पहले ही ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि हमें ट्रेनिंग से क्या चाहिए. तो सबसे पहली स्टेप होती है कि हमारे कंपनी के अंदर इवेलुएट करना, एनालाइज करना, स्टडी करना, इन्फो कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना कि हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे कंपनी के कौन से डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है. वेदर इट इज ऑपरेशन डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एनी अदर, डजंट मैटर. कौन से डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है उसको क्या करना, एसेस करना. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. देन सेट ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव. हमने डिसाइड कर लिया है. हमने क्या डिसाइड किया है? हमने डिसाइड किया है कि एचआर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है. हमने डिसाइड किया है कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है. हमने डिसाइड किया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट. तो 3 डिपार्टमेंट में से हम सोचते हैं कि हमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है. राइट, ऑपरेशन ट्रेनिंग में डिपार्टमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि हमारे कस्टमर से बहुत ज्यादा कंप्लेंट आया है कि हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ठीक नहीं रहता है, वो अच्छा नहीं रहता है. हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ठीक नहीं, तो हमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है. हमें पता चल गया. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या बना है? हमारा ऑब्जेक्टिव बना है कि हमारे डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्ट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट जो में जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो बेस्ट क्वालिटी का बने, जो कि अभी नहीं बन रहा है. सबसे पहले हमने एसेस किया, हमने स्टडी किया. स्टडी में हमें पता चला ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है. ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है. हमने ऑब्जेक्टिव बनाया. हमने ऑब्जेक्टिव क्या बनाया? हमारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या बना है? ट्रेनिंग से क्या हमें मिलना चाहिए? हमारा प्रोडक्ट बेहतर और बेहतर होना चाहिए. जो कंप्लेंट कस्टमर की आ रही है वो कंप्लेंट आगे जाके नहीं आनी चाहिए. देन ट्रेनिंग का एक्शन प्लान. हमें पता चला कि एम्प्लॉय नहीं बना पा रहे अच्छा प्रोडक्ट. हम क्या करेंगे? हम एक क्लासरूम अरेंज करेंगे. क्लासरूम अरेंज करने के बाद जो मशीनरी में वो काम करते वो मशीनरी को लाएंगे. राइट, हम कोई स्पेसिफिक बहुत बड़े प्रोफेशनल को हायर करेंगे ट्रेनिंग देने के लिए 10 दिन की, 12 दिन की. वो ट्रेनर क्या करेगा? वो ट्रेनर कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज है वो सबको ट्रेनिंग देगा. मतलब जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां वहां कंपनी के प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देगा. मशीन चालू रहेंगी, काम होते रहेगा और चालू काम में जो ट्रेनर है वो एम्प्लॉय को बताते रहेगा कि आपका प्रॉब्लम यहाँ हो रही है, यहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है, यहाँ पे आपके प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है, यहाँ पे आपकी गलतियां हो रही है. राइट, देन आफ्टर ट्रेनिंग लेते समय एम्प्लॉय को लगेगा, क्या लगेगा? हाँ, मेरी यहाँ पे गलतियां हो रही थी. देन क्या करेगा? देन वो अपने कंपनी में जाएगा. ट्रेनिंग हो गई है उसकी क्लासरूम में, अरेंज करेगा. प्रैक्टिकल अरेंज करने के बाद वो अपने एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट करेगा. जो ट्रेनिंग उसने सीखी है, जो स्किल उसने इवेलुएट की है, ट्रेनर ने जो उसको जो भी सिखाया वो कंपनी में जाके इम्प्लीमेंट करेगा. मशीनरी पे काम करेगा. मशीनरी पे काम करने के बाद यहाँ पे आती है फाइनल स्टेप. फाइनल स्टेप क्या है? ट्रेनिंग लेने के बाद, उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद, मतलब हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग ली है एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए.
ट्रेनिंग होने के बाद वो एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट अच्छा बनाने के बाद जब हम मार्केट में बेचेंगे, जब कस्टमर का हमें फीडबैक आएगा, तब हमें पता चलेगा कि हमारी ट्रेनिंग सही से हुई है या नहीं हुई है। और अगर नहीं हुई है तो फिर से ट्रेनिंग अरेंज करो। अगर ट्रेनिंग अगर अच्छा प्रोडक्ट बना है तो हमारी ट्रेनिंग वहां पे खत्म हो जाती है। समझा? सर एक बार रिपीट करो ना। पूरा। सबसे पहले हम ट्रेनिंग की नीड को एसेस करेंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है। हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कौन से डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है। हमें पता चल गया ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की जरूरत है, वहां के एम्प्लॉय जो है वो मशीनरी पे काम नहीं कर पा रहे क्योंकि कस्टमर की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही है। हमें पता चल गया क्यों, क्योंकि हमने इवेल्युएट किया है, पता चल गया हमें। देन आफ्टर हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे कंपनी के एम्प्लॉय के अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव भी बन गया। एसएस किया हमने, ऑपरेशन डिपार्टमेंट ट्रेनिंग की जरूरत है, ऑब्जेक्टिव बना कि प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए। 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? एक्शन प्लान बनाएंगे कि किसे हायर करना है, कितने दिनों के लिए हायर करना है, राइट? कौन सी मेथड्स यूज करनी है, ट्रेनिंग की कौन सी मेथड्स यूज करनी है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कितने बार करना है, इतने दिनों अगर इतने एम्प्लॉय को काम में हम लगाते हैं, इतने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग के लिए हम लगाते हैं, तो किस तरीके से कंपनी में दूसरा काम हो पाएगा। इन सारे चीजों के बारे में सोचना, मतलब क्रिएट एन एक्शन प्लान। हमें इतने प्रैक्टिकली एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है, उनके लिए एक प्रॉपर क्लासरूम अरेंज करना। देन इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव। यहाँ पे हमारे थर्ड स्टेप में हमारे एम्प्लॉय ने समझ लिया है, उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, अभी वो अपने कंपनी में जाके जो ट्रेनिंग उन्होंने ली है उसको क्या करेंगे? वो इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने उनको सिखाया है कि एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे बनाना है। उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, नया प्रोडक्ट बनाया, फिर हम वो कस्टमर को बेचेंगे, राइट? कस्टमर को बेचने के बाद फिर कस्टमर का फीडबैक आएगा कि प्रोडक्ट जैसा बेहतर बना है या नहीं बना है। फिर कस्टमर का अगर फीडबैक अच्छा आता है कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट बना है, तो हम ट्रेनिंग को वहीं पे रोक देंगे। बट अगर ट्रेनिंग में हमें पता चलता है कि फिर से हमारे एम्प्लॉय ने अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाया, तो हमसे फिर हम नई तौर पर ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ठीक है? हाँ सर। समझा सबको? देखिए बेटा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो ये है ना, यूनिट है, मॉड्यूल है, ये इम्पोर्टेंट है। जिस हिसाब से यहाँ पे कंटेंट हमें मिल रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन अमूल कंपनी लिमिटेड। सर अभी असाइनमेंट के क्वेश्चन भेजे ग्रुप पे हमने। अभी भेजे? आज अभी चेक करो ना वो बरोबर है क्या तो। 1 मिनट बेटा। कौन से सब्जेक्ट के? IHRM। ठीक है ना, बट बेटा थोड़ा हैंडराइटिंग अच्छा यूज करना जब आप असाइनमेंट लिखोगे। हाँ सर। ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है।